A very warm good morning to one and all present here. I am Mohit Singh Katoj, Assistant Professor in Civil Engineering Department of Tulsiramji Gaikwad Patil, College of Engineering and Technology, Nagpur. I welcome you all on behalf of our college to celebrate this World Environment Day 2021. Today, we have a guest with us, Dr. Sandeep Kumar Shukla, sir. Before starting the event, I will give a brief introduction of sir. Dr. Sandeep Kumar Shukla sir did his BSc and MSc in chemistry from Rani Durgavati University, Jabalpur. Sir did his PhD in 2002 by RD University for his work in controlled drug delivery through hydrogels. Sir has worked as research associate in collaborative research project of Government Autonomous Science College, Jabalpur and National Chemical Laboratory, Pune, which is funded by Department of Science and Technology, Government of India. Sir has published more than 40 scientific papers, reviews, book chapters, etc. in referred international journal and conference proceedings. Sir has presented more than 120 lectures in various international and national level conference workshops, training programs. Since 2006, Sir is serving as Assistant Research Officer appointed through UPSC in Central Water Commission, Ministry of Water Resources. And from May 2014, he is working as Research Officer in Vanganga Division, Central Water Commission, Nagpur till date. Sir was selected for the post of Scientist in National Institute of Pharmaceutical Education and Research under the Ministry of Chemicals and Fertilizers, Government of India. Dr. Sandeep sir has also co-authored a book published by RAPRA Publications, United Kingdom, namely Stimuli Responsive Drug Delivery Systems from Introduction to Application. Sir is a life member of various national and international associations like Indian Science Congress Association, Japan International Corporation Alumni Association. Sir is also a technical committee member of Indian Waterworks Association, India. Sir's area of interests are water purification, water quality monitoring, responsive polymers, and controlled drug delivery system nanotechnology. So without further ado, I request Dr. Sandeep Shukla sir to begin this session. I hand over this session to sir. You can begin with your presentation. Thank you. Thank you, Mr. Pandeyji, for nice introduction. And I am Dr. Sandeep Shukla from Central Water Commission, working as research officer. And hello, everyone. Good morning to all of you. Firstly, it is my privilege to deliver the lecture of most recent debatable issue, that is water management impact on water quality due to COVID-19 lockdown. I would like thanks Professor Amey Khadikar, Head of Department Civil Engineering at Tulsiram Gaikwad Patil College of Engineering and Technology, for giving me the opportunity for sharing my views. I would also like to extend my regards to O.N. Mukherjee, Honorary Secretary of EWA, Nagpur, and C. Mohit Singh, Assistant Professor at Civil Engineering Department at Tulsiram Ji Gaikwad Patil College of Engineering and Technology, Nagpur, for their good coordination during the event. And now get back to the topic. In COVID, listen, almost negative news from every side, but there is some positive news. Due to COVID period, lockdown, due to COVID lockdown, water quality of our river and our water resources is improved. Now, as you know, my topic today is water quality management, impact on water quality due to COVID-19 lockdown. I am giving this lecture with the help of this content. First, we will understand the water quality, quantity, water pollution, adverse effect of water pollutants, water quality rated legislation, and water quality improvement during the lockdown due to COVID-19.
we can say clean water is blessing from God, do not pollute it. जल जीवन का आशीर्वाद है, इसे प्रदूषित ना करें। हम यदि देखते हैं नेचर में वाटर हमें किस फॉर्म में रिसीव होता है, वाटर हमें स्मॉल बहुत सी ड्रॉप्स के फॉर्म में हमें रिसीव होता है, और ये वाटर के ड्रॉपलेट्स हैं, ये ड्रॉपलेट्स जब हमारे अर्थ में आती हैं तो डिफरेंट प्लांट और फ्लावर में जब रिटेन करती है तो इस तरह से ब्यूटीफुल इमेजेस होती हैं। लेकिन ह्यूमन इंटरवेंशन और ह्यूमन पॉपुलेशन के कारण हम फाइनली इसकी जब एक ह्यूज क्वांटिटी में जाती है तो हम इस तरह से कर देते हैं। यदि हम नागपुर की बात करें तो नाग रिवर की इमेज भी लगभग ऐसी ही है। तो इसका बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि हमें वाटर तो एक क्वालिटी फॉर्म में मिलता है, लेकिन हम अपने एक्टिविटी के थ्रू इस वाटर की क्वालिटी को रिड्यूस कर देते हैं by adding some waste material. So there is some very basic concept about water hydrological cycle. Everyone know about the hydrological cycle, but I am discussing about how hydrological cycle work to maintain the end quality. And my basically is water quality. Now I am discussing the water quality. By the water quality, for maintaining the water quality, water exists in three forms: liquid stage, vapor stage, and solid stage or ice stage. When water is in liquid form, there is very high chances to dissolution and ionization of the compound and degradation of the compound. And when water in the vapor state, insolubility impurities retain in the earth and soluble impurities going with the cloud. It means insolubility impurities will be removed during evaporation. When water is the ice stage, microbiological activity is stopped, micromolecular multiplication is stopped. That time water is free from microbiological contamination. Now this is the way of purification. पर बेसिकली होता क्या है, जब एक अमाउंट से ज्यादा हम वेस्ट मटेरियल को लिक्विड में डालते हैं या रिवर्स में हम डालते हैं, तो रिवर्स में एक ऑक्सीजन की मात्रा होती है 8 mg पर लीटर। यदि 8 mg पर लीटर से ज्यादा यदि हम वेस्ट उसमें डालते हैं तो उसमें 8 mg कंज्यूम होने के बाद जो भी वेस्ट मटेरियल जाता है, जो कि बायोडिग्रेडेबल भी होता है, वो भी उसमें डिकम्पोज नहीं होता। इसी तरह से जब हम वेपर फॉर्म करते हैं, जब उसमें सॉल्युबल इम्प्यूरिटीज होती हैं, तो सॉल्युबल इम्प्यूरिटीज क्लाउड के फॉर्म में एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ट्रेवल करती है। फिर हम बात करते हैं आइस में। आइस में मैंने बताया जिसकी माइक्रोबायोलॉजिकल इम्प्यूरिटीज जो है वो पूरी तरह से स्टॉप हो जाती है, लेकिन पूरी तरह से रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल हो जाते हैं, लेकिन उसी समय जो केमिकल कंटामिनेंट्स होते हैं वो उनमें कोई चेंज नहीं आता, उनकी किसी भी तरह का रिएक्शन और डिग्रेडेशन पूरी तरह से रुक जाता है। तो बेसिकली आप देखते हैं कि वाटर जब ओपन एटमॉस्फेयर में रहता है, यूवी लाइट इंफ्रारेड रेडिएशन जो कि हमें सनलाइट से मिलती है, उसके प्रेजेंस में ऑक्सीजन होती है और एटमॉस्फेयर में ह्यूज अमाउंट में ऑक्सीजन होती है, 20-21% होती है, और वाटर में 8 mg पर लीटर ऑक्सीजन होती है। इसके प्रेजेंट में जो वेरियस केमिकल कंपाउंड है उनका डिग्रेडेशन होता है। लेकिन जब ये अमाउंट ज्यादा बढ़ जाता है वेस्ट मटेरियल का तो इनका डिग्रेडेशन नहीं होता। लिक्विड स्टेज में यदि अप स्ट्रीम में किसी तरह का पॉल्यूटेंट डाला जाता है तो इनको डाउन स्ट्रीम तक वो पॉल्यूटेंट को लेके जाता है, यदि उसको एप्रोप्रिएट अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो। नाउ दिस इज आल्सो another one very basic slide. Our 70% Earth surface is covered by water. 1.4 all water on the Earth is salt water. 2.5 as a fresh water. Out of this 2.5%, 77% fresh water is frozen water. 21% approximates groundwater, and 1% is surface water. And in this 1%, 61% is river and lakes, and 30% is soil moisture, which is not accessible. So it means less than 1% water is available for us. It means
water everywhere is water. Sea water, we can use sea water for drinking. For another purpose, we cannot use water. By the quality, we can decide water. We can use water for the which purpose. We want to convert our bad water cycle existing to good water cycle. Our wet water cycle, no wastewater treatment plant, severe environment pollution, public health hazard. Why? Because absence of appropriate technology for wastewater treatment, insufficient fund and infrastructure, lack of proper environment education and awareness. If we want to good water cycle, we should convert the proper treatment of the wastewater and minimization of the health risks and pollution abatement cost, by which appropriate wastewater treatment system, manpower training, development, environment awareness. By this, we can convert the good bad water cycle into the good water cycle. About water and city. Every second, in urban population, 2 people are adding 5 million urban population each month. 20% of the urban population in the developing world not have the pipe water in house, and 493 million people in cities share their sanitation facility. In 1990, this number was 259 million. In Africa, Asia, and our population will be double between 2000 and 2030. It means condition become worst. Why? Because whenever जब भी कोई आदमी किसी शहर में शिफ्ट होता है, तो वहां पे जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है, वो चाहे रेंट के हाउस में शिफ्ट हो या रेंट के हाउस में हो या ओन हाउस में, तो 125 लीटर के हिसाब पर पर्सन के हिसाब से 125 टू 150 लीटर के हिसाब से पर पर्सन के हिसाब से वाटर सप्लाई करना। यदि 4 रन है तो अप्रोक्सीमेट 500 लीटर वाटर उसको सप्लाई किया जाता है। ये जो वाटर होता है ट्रीटेड वाटर होता है, क्वालिटी वाटर होता है। तो जब हमारे सिटीज में पॉपुलेशन बढ़ेगी, सिटीज में वाटर की डिमांड बढ़ेगी, तो वाटर हमके ऊपर लोड बढ़ेगा। तो जो सिटीज में पॉपुलेशन बढ़ने से हमारे वाटर रिसोर्स सिस्टम पे लोड बढ़ रहा है, हमारे ट्रीटमेंट प्लांट पे लोड बढ़ता है, क्योंकि हमें हमारे जो हाउस होल्ड है उनको ट्रीटेड वाटर ही सप्लाई करना। अब हम बात करते हैं प्रोजेक्टेड वाटर डिमांड इन वेरियस सेक्टर। फिर हम वाटर क्वालिटी की बात करते हैं तो हमें ये डिस्कस करना होता है कि वाटर क्वालिटी यदि अच्छी होगी तो ये गुड क्वालिटी होगी या BIS के नॉर्म्स में होगी तो हम उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन BIS के नॉर्म्स जो है वो डिफरेंट वाटर क्वालिटी के लिए डिफरेंट है। तो यहाँ क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट है, स्टैंडर्ड सम कमिटी ऑफ रिपोर्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज एंड नेशनल कमीशन फॉर इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट, इन दोनों ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि 2010 से 2050 तक किस तरह से हमारी वाटर डिमांड बढ़ रही है। अब यहाँ क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट के साथ साथ हमें क्वालिटेटिव एस्पेक्ट भी डिस्कस करना पड़ेगा। जब हम इरिगेशन वाटर की का डिस्कस करते हैं तो क्वेश्चन आता है कि उसमें क्या क्वालिटी होनी चाहिए। तो वाटर क्वालिटी, इरिगेशन वाटर में जो वाटर क्वालिटी है उसमें बोरान, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, pH और सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एक डिजायरेबल अमाउंट में होना चाहिए, उससे ज्यादा अमाउंट में नहीं होना चाहिए। जब हम ड्रिंकिंग वाटर की बात करते हैं तो ड्रिंकिंग वाटर की जब हम बात करते हैं तो उसमें 67 पैरामीटर होने चाहिए। BIS का जो स्टैंडर्ड है वो ये 67 जो पैरामीटर्स हैं वो जब विद इन लिमिट होते हैं तभी हम उस वाटर को ड्रिंकिंग वाटर के लिए यूज करते हैं। यदि हम इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री में जो वाटर बॉयलर में सप्लाई होता है या फूड इंडस्ट्री में सप्लाई होता है, यदि फूड इंडस्ट्री में वाटर सप्लाई की बात करें तो एज गुड एज ड्रिंकिंग वाटर जैसा ही होना चाहिए। और यदि हम बात करें अदर इंडस्ट्री में तो बॉयलर में वाटर सप्लाई होता है तो उसमें जो टोटल हार्डनेस है, कैल्शियम और मैग्नीशियम हार्डनेस है, ये कम से कम होना चाहिए। यदि हम एनर्जी सेक्टर की बात करें तो जो वाटर है उसका pH और उसकी टर्बिडिटी कम से कम होना चाहिए।
पीएच एक रेंज में होना चाहिए और टर्बिडिटी कम से कम होना चाहिए। और अगर यदि वाटर रिक्रिएशन एक्टिविटी की बात करें या अम्यूजमेंट पार्क में जो वाटर यूज होता है, उस वाटर में हमें बैक्टीरिया कंटामिनेशन नील होना चाहिए, तभी उस वाटर को हम अम्यूजमेंट पार्क में यूज कर सकते हैं। तो हमारा जो वाटर की क्वालिटी है, क्वांटिटी है, उसका क्लासिफिकेशन वाटर की क्वालिटी के बेस पे बना है और हर एक सेक्टर में वाटर की डिमांड कंटिन्यूस बढ़ती जा रही है। अब हम for the purpose of the student, what is what water may contain physically clay, silt, humus, peat material, and weeds. These are the natural material. Everywhere water contains and chemical calcium, magnesium, sodium, potassium, chloride, sulfate, chloride, carbonate, nitrate, phosphate. These material dissolve or undissolved form available in the water. It may be some in small amount or higher in small concentration or higher concentration. Metals, generally metals available in the water in the lower concentration: iron, manganese, copper, chromium, cadmium, zinc, lead, mercury, nickel, selenium, boron. इसमें से कुछ जो मटेरियल्स होते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फ्लोराइड, ये एक स्पेसिफिक अमाउंट में हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट, यदि ये पूरी तरह से वाटर में नहीं होंगे तो हमें लॉस होगा, हमारी बॉडी में मिनरल्स की कमी हो जाएगी। लेकिन जो मेटल्स होते हैं, केमिकल्स के केस में केमिकल्स होने चाहिए, लेकिन मेटल्स की होती है, मेटल्स की बहुत लोअर कॉन्सेंट्रेशन हमारे वाटर में होनी चाहिए। उससे हायर कॉन्सेंट्रेशन यदि होती है तो उसके टॉक्सिक इफेक्ट है। इसके बाद ऑर्गेनिक, टोटल ऑर्गेनिक कंटेंट, फिनॉल्स, ऑयल, ग्रीस, पेस्टिसाइड, इनकी हमारी बॉडी में कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, ये हमारी बॉडी में कंप्लीटली एब्सेंस होना चाहिए। बैक्टीरियोलॉजिकल, टोटल कोलिफॉर्म और फीकल कोलिफॉर्म। टोटल कोलिफॉर्म और फीकल कोलिफॉर्म एक बैक्टीरिया की क्लास है। यदि हमें देखना है कि वाटर बैक्टीरिया से कंटामिनेटेड है कि नहीं है, तो हम टोटल कोलिफॉर्म और फीकल कोलिफॉर्म का एस्टिमेशन करते हैं। फिर हम बायोलॉजिकल में बात करते हैं जू प्लैंक्टन और फाइटोप्लैंक्टन। जू प्लैंक्टन जो होते हैं, जो प्लांट्स फाइटोप्लैंक्टन जो होते हैं वो अपनी फोटोसिंथेसिस करते हैं और प्लांट के जैसे दिखते हैं, और जू प्लैंक्टन जो होते हैं वो फाइटोप्लैंक्टन पर डिपेंड होते हैं। ये जू प्लैंक्टन और फाइटोप्लैंक्टन वाटर क्वालिटी के बहुत अच्छे इंडिकेटर माने जाते हैं। जब वाटर को प्रॉपर्ली ट्रीट करके किसी रिवर में डिस्चार्ज किया जाता है तो कई बार ये देखने आया है कि वहां पे जू प्लैंक्टन और फाइटोप्लैंक्टन की संख्या, यदि वाटर क्वालिटी अच्छी है तो ठीक होती है, अदरवाइज जू प्लैंक्टन और फाइटोप्लैंक्टन की संख्या कम हो जाती है। और जू प्लैंक्टन और फाइटोप्लैंक्टन की संख्या कम होने से वहां का इकोलॉजिकल सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब। इसके बाद रेडियो एक्टिव एलिमेंट की बात करते हैं। अल्फा इमिटर, बीटा इमिटर, हमारे नेचर में बहुत सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट पाए जाते हैं। तो पूरे रेडियो एक्टिव एलिमेंट को हम एनालाइज नहीं करते, हम सिर्फ उनको क्लासिफाइड कर दिया अल्फा इमिटर और बीटा इमिटर, क्योंकि अल्फा और बीटा रेडिएशन ही हमारे लिए हार्मफुल है, डेल्टा और गामा रेडिएशन हमारे लिए हार्मफुल नहीं है। Now, and discussing how we can decide which water is good for us. Safe water है क्या, वाटर की शुद्धता क्या है? तो वाटर शुड बी एक्सेप्टली एक्सेप्टेबल। जब तक वाटर में कोई स्मेल है, किसी तरह का कलर है या किसी तरह का टेस्ट है, तो हम उसको एक्सेप्टेबली एक्सेप्ट नहीं करते। मतलब हम फिजिकली देखते हैं वाटर को कि वाटर में किसी तरह का कोई कंटामिनेशन, कोई पार्टिकल या उसके टेस्ट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है या स्मेल तो नहीं है। यदि उसमें स्मेल है तो हम उस वाटर को एक्सेप्ट नहीं करते, चाहे उसको कितनी भी अच्छी कंपनी का उसमें लेबल लगाओ या कितना भी ऑथराइज्ड एजेंसी सर्टिफिकेट। फिर बात होती है केमिकली सेफ। यहाँ वर्ड यूज कर रहे हैं केमिकली सेफ। केमिकली सेफ इट मीन्स जो मिनरल की कॉन्सेंट्रेशन है वो सर्टेन लिमिट तक वाटर में होनी चाहिए। यदि वो एक लिमिट तक नहीं है तो वो हमारे लिए हार्मफुल है, इसीलिए टर्म यूज करी गई है केमिकली सेफ। फिर हम डिस्कस करते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ऑर्गेनिक सब्सटेंस मतलब डीडीटी, पॉलीक्लोरोबेंजीन, फिनाइल्स, ये सब चीजें जो है ये सब ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ये वाटर में कंप्लीटली एब्सेंट होना चाहिए। फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया,
फ्री, जो वाटर है ड्रिंकिंग के लिए जब हम यूज करते हैं या प्योर वाटर जिसको कहते हैं, वो बैक्टीरिया से फ्री होना चाहिए। अब हम बात करते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट की। रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो अल्फा इमिटर या बीटा इमिटर है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट भी वाटर में एक्सेप्ट होना चाहिए। इट मीन यदि वाटर की प्योरिटी की बात करते हैं तो दो क्राइटेरिया आते हैं, मेन एस्थेटिकली एक्सेप्टेबल, दूसरा केमिकली सेफ, मतलब मिनरल की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो स्पेसिफिक लेवल तक होनी चाहिए। यदि उससे हाई कॉन्सेंट्रेशन है तो हमारी हार्मफुल है, उससे लो कॉन्सेंट्रेशन है तो हम ले तो सकते हैं, लेकिन हमेशा यदि हम सीधे डिस्टिल वाटर या लो टीडीएस का वाटर कंटिन्यूस पीते हैं तो हमें मिनरल की प्रॉब्लम हो जाती है। अब वाटर क्वालिटी स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि बात करें तो वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग में कौन कौन सी एजेंसीज इन्वॉल्व है? तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर is involved in the study of radioactive element in the surface and groundwater. Central Pollution Control Board, State Pollution Control Board, is engaged to monitoring the surface and groundwater with special emphasis for industrial water and wastewater and effluent. Basically, Pollution Control Board pollution को मॉनिटर करता है और वो डिफरेंट इंडस्ट्रीज को नोटिस इशू करता है यदि वो पोल्यूशन ज्यादा करे। सेंट्रल वाटर कमीशन जो है वो वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग रिवर सिस्टम की करता है, और जो वाटर क्वालिटी के रिजल्ट होते हैं उसको इरिगेशन और ड्रिंकिंग वाटर, जो ड्रिंकिंग वाटर स्पेसिफिकेशन जो है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का, उससे हम कंपेयर करें। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड भी सीडब्ल्यूसी की जैसे ग्राउंड वाटर की सीडब्ल्यूसी सरफेस वाटर की मॉनिटरिंग करता है, सेंट्रल ग्राउंड वाटर की मॉनिटरिंग करता है। NIH, National Institute of Hydrology, Roorkee, is involved research activity on water quality. National Environment Engineering Research Institute involved environment impact study related to water and wastewater. And NEERI also involved in wastewater treatment technology. And Indian Agriculture Research Institute, State Irrigation Department, involved in water quality for the use of agriculture control. Public Health Engineering Department monitor the water quality for drinking purpose. And many other organizations also involved in water quality monitoring. These are the main organizations. These are the decision making regarding the water quality issues. Now, topic is water pollution. How our water is polluted? हमारी जो म्युनिसिपल सीवेज है ऑल ओवर इंडिया में, लगभग हमारा जो म्युनिसिपल सीवेज है हमारे रिवर्स का 70% पॉपुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और जो इंडस्ट्रीज है 30% पॉपुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये एक ह्यूज अमाउंट में वाटर जो होता है वो सीवेज वाटर हमारे एक्वेटिक सिस्टम में मिक्स हो रहा है ड्यू टू लैक ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट कैपेसिटी। और यदि हम बात करते हैं छोटे छोटे सोर्स या नॉन पॉइंट सोर्सों की, तो उसमें देखते हैं रन ऑफ फ्रॉम सॉलिड मेडिकल वेस्ट एंड एग्रीकल्चर फीड, ओपन डिफिकेशन कैटल ग्रोइंग, डिस्पोजल ऑफ डेड बॉडी एंड एनिमल कार्कासेस। ये सब स्मॉल सोर्सेस होते हैं, इनको एस्टिमेट किया जा सकता है। तो ये मेन सोर्सेस है हमारे वाटर को पोल्यूटेड करने के लिए। बात करें पॉइंट सोर्स नॉन पॉइंट सोर्स और गंगा रिवर के पोल्यूशन की, तो गंगा रिवर के पोल्यूशन का हमेशा डिस्कशन होता है, जिसको सबसे होली रिवर माना जाता है। ये कुछ समय पहले बनाई हुई स्लाइड है। बेसिकली गंगा में पोल्यूशन किस तरह से होता था, क्या चैलेंजेस हैं, क्या कॉस्ट, मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। ड्यू टू ऑर्गेनिक वेस्ट, सीवेज, इंडस्ट्रियल वेस्ट, ट्रेश पॉल्यूशन केस, क्लॉथ, फूड, human dead body and animal carcasses. Why? Because urbanization, rapid industrialization, rising standard of living and exponential population growth. Due to this, causes waterborne diseases like cholera, hepatitis, typhoid, and dysentery, gallbladder disease, and leading to 80% of all health problems. Then we will discuss point source and non-point source. What contained in the point source? Point source pollution, industrial waste, million liter per day, industrial waste mixing into the river. Can you imagine? हम सोच सकते हैं कि इतना वेस्ट किसी रिवर में मिलाया जा रहा है, उसकी क्वालिटी मेंटेन होगी? 1.3 मिलियन लीटर पर डे। इस वेस्ट में होता क्या है? पेस्टिसाइड,
DDT, hydrochloric acid, cyanide, salt, leaches and dye, heavy metals, ammonium sulfide and other organic compound. एंड ये वेस्ट आता कहाँ से है? फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल कंपनी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री और ये वेस्ट आता है। और ये वेस्ट में डिफरेंट टाइप के पेस्टिसाइड और एसिड्स होते हैं, ये वेस्ट हमारे इसमें मिक्स होता है। अब बात करते हैं म्युनिसिपल सीवेज की। म्युनिसिपल सीवेज में ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, न्यूट्रिएंट होता है, कोलिफॉर्म होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड मैंने आपको बताया, फिनाइल, ऑयल, ग्रीस। न्यूट्रिएंट मतलब नाइट्रोजन एंड फास्फोरस के कंपाउंड। कोलिफॉर्म मतलब कोलिफॉर्म ई कोलाई बैक्टीरिया और फीकल कोलिफॉर्म। नॉन सोर्स की बात करते हैं तो नॉन सोर्स में हम देखते हैं रन ऑफ फ्रॉम रूरल सेटलमेंट। जो रन ऑफ वाटर होता है रूरल सेटलमेंट से वो आके रिवर मिक्स होता है। फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड एग्रीकल्चर फील्ड से आके मिक्स होते हैं। ओपन डिफिकेशन गंगा या सभी रिवर में एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है। डंपिंग ऑफ एनिमल कार्कसेस, एनिमल की जो बॉडीज होती है उनको डायरेक्ट कई बार रिवर में फेंक दिया जाता है। डिस्पोजल ऑफ डेड बॉडी, फ्लोरिंग ऑफरिंग, सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल, धोबी घाट, कैटल ब्लोइंग एंड मास मर्डर, ये सभी एक्टिविटी गंगा रिवर के पोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वह हजारों लोग, लाखों लोग वहां पे जाके सोप डिटर्जेंट का यूज करते हैं और वहां पे क्लॉथ वॉश करते हैं, बाथिंग करते हैं, जिससे वहां की क्वालिटी डिटोरेट हो रही है। एनुअली यदि हम देखें 40,000 क्रीमेशन परफॉर्म एनुअली इन वाराणसी, मतलब 40,000 लोगों को क्रीमेशन एनुअली वाराणसी में किया जाता है, वाराणसी घाट में किया जाता है। और कई बार अनबर्न बॉडी को गंगा रिवर में फेंक दिया जाता है। तो दिस इज द मेजर कॉज ऑफ गंगा रिवर पोल्यूशन। नाउ पॉइंट सोर्स एंड नॉन पॉइंट सोर्स, जैसा मैंने सीधे पॉइंट सोर्स को हम मेजर कर सकते हैं और नॉन पॉइंट सोर्स को हम मेजर नहीं कर सकते। इसको मैथमेटिकल मॉडलिंग के थ्रू डिसाइड कर सकते हैं कि कितना अमाउंट ऑफ कंटेमिनेटेड वाटर मिक्स रिवर में मिक्स हो रहा है। इसका यदि हम रूट कॉज देखें कि ये प्रॉब्लम है क्यों, ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट क्यों करती है, तो आप पाते हैं कि हमारे जो 2013 की रिपोर्ट है उसके बाद से भी इसमें रिपोर्ट आई। 2013 में सेंटर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने एक रिपोर्ट सबमिट करी, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट अंडर नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान। इस रिपोर्ट के अनुसार यदि हम देखते हैं हमारी जो 35 सिटीज का डाटा इसमें सबमिट किया गया और 35 सिटीज के डाटा में हम ये देखते हैं कि लगभग हम 15,000 MLD सीवेज जनरेट करते हैं, उसमें से ओनली हम 8,000 MLD सीवेज ही ट्रीट कर पाते हैं। ये मैंने डिफरेंट लोकेशन हैदराबाद, अहमदाबाद, बड़ौदा, लुधियाना और चेन्नई, ये चीज ऐसी है कि जहाँ पे सीवेज का 100% ट्रीटमेंट हो रहा है। यदि हम नागपुर में 2013 में 26% सीवेज का ट्रीटमेंट हो रहा था। अभी भांडेवाड़ी वगैरह के प्लांट बनने के बाद नागपुर में 100 का प्लांट भांडेवाड़ी का बना है, तो वो लगभग फाइनल स्टेज में ही है, तो उसमें भी सीवेज ट्रीटमेंट किया जाना है। तो उससे हम देखेंगे कि हमारे सीवेज ट्रीटमेंट का परसेंटेज बढ़ जाता है। तो लेकिन यदि सीवेज ट्रीटमेंट नहीं बढ़ता है तो जो हमारे रिवर, नाग नदी या किसी नाले से जो पानी होता है उनमें जाके मिक्स होता है। तो ये बेसिक सोर्स है हमारे पॉल्यूशन का। अब यदि हम बात करें स्टेट वाइज, तो स्टेट ऑफ वाइज कंडीशन तो और ज्यादा खराब है। लगभग हमारा स्टेट का यदि हम इस रिपोर्ट के अनुसार देखें तो 35,000 MLD हम सीवेज जनरेट करते हैं और उसमें से सिर्फ 500 MLD ही हम ट्रीट कर पाते हैं। रिमेनिंग जो अमाउंट है वो हमारे वाटर रिसोर्स या हमारे सॉइल को कंटामिनेट करता है। तो हमारा जो बेसिकली पॉपुलेशन बढ़ने से जो लोड आया है, वो लोड आया उसके कारण हमारा सीवेज ट्रीटमेंट नहीं होता, हमारे वाटर रिसोर्स कंटामिनेट होता है। इस स्लाइड में आप क्लियर कट देखेंगे कि हमारी जो अर्बन पॉपुलेशन है वो किस तरह से बढ़ गई। 1901 में यदि आप देखें तो हमारी पॉपुलेशन 2.6 करोड़ थी और कुछ साल तक हमारी पॉपुलेशन काफी स्टेबल थी। लेकिन 1961 से यदि हम देखें
तो हमारी पॉपुलेशन में शार्प इंक्रीज हुआ। शार्प इंक्रीज होने से क्या हुआ है कि बेसिकली हमारी वाटर की डिमांड बढ़ी है, और वाटर की डिमांड बढ़ने के साथ साथ हमारा वाटर की डिमांड बढ़ने के साथ साथ हमारा जो सीवेज जनरेशन है, जो हमारा सीवेज जनरेशन है वो भी बढ़ा है। तो जब सीवेज जनरेशन बढ़ेगा तो हमारे रिवर सिस्टम की कंटामिनेशन होने की संभावना बढ़ जाएगी। हमारे इंडस्ट्रियल उसके इंडस्ट्रियल वेस्ट जो वेस्ट वाटर निकलता है उसकी उसकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। यदि हम देखें 2009 तक का डाटा अवेलेबल है, 1978 से हम देखें तो सीवेज जनरेशन जो है वो अनट्रीटेड सीवेज का अमाउंट, और हम काफी कोशिश कर रहे हैं कि सीवेज ट्रीटमेंट हो, लेकिन हमारा अनट्रीटेड सीवेज का अमाउंट कंटिन्यूस बढ़ता जा रहा है। अब मैं बात करता हूँ कॉजेज ऑफ, ये मैंने सरफेस वाटर पोल्यूशन की मेनली बात करी। अब मैं वो बात करता हूँ कॉजेज ऑफ ग्राउंड वाटर पोल्यूशन। ग्राउंड वाटर पोल्यूशन में 3D डायग्राम में बिल्कुल सेल्फ एक्सप्लेनिंग है। जब कोल स्ट्रिप माइन का रन ऑफ होता है उससे ग्राउंड वाटर कंटेमिनेटेड होता है। वेस्ट वाटर लेगून से वाटर पर्कुलेट होकर नीचे फ्रेश वाटर एक्विफायर, कन्फाइंड एंड कन्फाइंड एक्विफायर में जाता है। लैंडफिल साइट होती है, उससे वाटर, उसमें कुछ केमिकल्स या कुछ पोल्यूटेंट होते हैं, वो पर्कुलेट होके नीचे ग्राउंड वाटर में जाते हैं। कहीं कहीं एक रॉन्ग प्रैक्टिस है हजार्डस वेस्ट इंजेक्शन में, उसमें वाटर निकलता है इंडस्ट्री से या किसी सेक्टर से, उसको वो वेल में डायरेक्ट। तो ये जो प्रैक्टिस है ये बहुत हार्मफुल प्रैक्टिस है। इसके साथ साथ पेस्टिसाइड जो है, पेस्टिसाइड फैक्ट्री, इनमें भी वाटर पर्कुलेट होके नीचे ग्राउंड वाटर में जाता है। ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन सरफेस वाटर कंटामिनेशन से ज्यादा सीवियर प्रॉब्लम है। जो सरफेस वाटर कंटामिनेशन है, सरफेस वाटर कंटामिनेशन है, उसमें सरफेस वाटर कंटामिनेटेड होने के बाद वो एटमॉस्फेयर के टच में रहता है। ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में अवेलेबल ऑक्सीजन वाटर में डिजॉल्व होती रहती है वाटर से मूवमेंट से, और माइक्रोबायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है। सनलाइट में इंफ्रारेड यूवी रेड होती है, रेज होती है, जिससे कि जो पोल्यूटेंट मिक्स होता है उनका डिग्रेडेशन होता है। लेकिन जब हम ग्राउंड वाटर की बात करते हैं, यदि ग्राउंड वाटर में किसी तरह का पोल्यूटेंट पहुंच जाता है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ लाइट नहीं होती, डिजॉल्व ऑक्सीजन नहीं होती, वहां पे किसी तरह की माइक्रोबायोलॉजिकल एक्टिविटी नहीं होती। तो ग्राउंड वाटर जो है पॉल्यूशन बहुत सीरियस इशू है, और इसको एड्रेस करने की जरूरत है। यदि ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन हो तो उसको, उस वाटर को ट्रीट करना या उसका सेल्फ प्यूरिफिकेशन बहुत कम होता है, इसलिए ग्राउंड वाटर के पॉल्यूशन को ज्यादा सीरियस माना है। अब मेजर वाटर क्वालिटी थ्रेट्स क्या है? यदि मेजर वाटर क्वालिटी थ्रेट की बात करें तो माइनिंग एक्टिविटी, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, सैलिनाइजेशन, एग्रोकेमिकल, पैथोजेनिक कंटम्पशन, यूट्रोफिकेशन। जब भी माइनिंग की जाती है तो जो जिस प्लेस में माइनिंग की जाती है उसको पूरी तरह से डिहाइड्रेटेड किया जाता है। तो जब डिहाइड्रेटेड कर दिया जाता है तो नियर बाय वाटर बॉडी में उसके वाटर को डिस्चार्ज कर दिया जाता है। तो जब इस वाटर को डिस्चार्ज किया जाता है, ये वाटर में बहुत हाई कंसंट्रेशन में मिनरल्स होते हैं, और वो वाटर बॉडी जो है, रिवर या जो लेक्स होते हैं, उनको पोल्यूटेट करते हैं। फिर हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल एक्टिविटी की। जैसा मैंने बताया, हमारा पॉपुलेशन बढ़ने से हमारी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी कंटिन्यू बढ़ रही है, और जब इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में प्रोडक्शन बढ़ता है तो उसमें ह्यूज अमाउंट में वेस्ट वाटर भी निकलता है। लेकिन सभी इंडस्ट्रीज के पास वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट की फैसिलिटी नहीं होती है, या मीडियम स्केल इंडस्ट्री के पास वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट की कैपेसिटी नहीं होती है। और जो पॉल्यूशन का जो क्राइटेरिया है 250 mg पर लीटर केमिकल ऑक्सीजन डिमांड होनी चाहिए, उस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करते हैं, जिसके कारण हमारा वाटर कंटिन्यूस कंटामिनेटेड हो रहा है। सैलिनाइजेशन की बात करें, सैलिनाइजेशन का मतलब ये है कि वाटर में सॉल्ट का डिजॉल्व होना। तो वाटर में सॉल्ट कैसे डिजॉल्व होता है? या तो सी वाटर उसमें आके मिक्स हो जाए, या जो हम घरों में पानी यूज करते हैं, जब हमारे घर में 500 वाटर ट्रीटेड वाटर आता है तो उस वाटर में डिफरेंट टाइप के डिटर्जेंट, डिफरेंट टाइप के केमिकल यूज करते हैं, तो उसमें सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है। और जब ये सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे रिवर में जाता है, और समर सीजन में ह्यूज अमाउंट में वाटर इवोपरेट होता है, तो जो उसका सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन है वो रिमेन अर्थ में रह जाता है। तो अर्थ के एक्वेटिक सिस्टम में रहने से उसके सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है। अब इस सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन का
एडवर्स इफेक्ट क्या है, इस सॉल्टेड वाटर को हम इरिगेशन के लिए यूज नहीं कर सकते। यदि हम इस सॉल्टेड वाटर को इरिगेशन के लिए यूज करेंगे तो हमारी क्रॉप्स डैमेज होगी और वाटर की जो सॉइल है उसकी परमिएशन परमिएबिलिटी जो है या पेनिट्रेशन कैपेसिटी है वो कम है। अब हम एग्रीकल्चर की बात, एग्रोकेमिकल्स की बात करते हैं। तो वेन वी आर यूजिंग एग्रोकेमिकल्स, जब हम फील्ड में एग्रोकेमिकल्स यूज करते हैं तो हम कंटिन्यूस एक सीजन में एग्रोकेमिकल्स यूज करते हैं, फिर दूसरे सीजन में यूज करते हैं। हम सॉइल की टेस्टिंग बहुत फ्रिक्वेंटली नहीं करते हैं। तो जब एक्सेस अमाउंट में एग्रोकेमिकल्स यूज किया जाता है, बल्कि इंडिया में तो टनों से एग्रोकेमिकल्स यूज किया जाता है, तो फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड कंप्लीटली उस क्रॉप में यूज नहीं होते हैं, या पेस्टिसाइड कंप्लीटली उस इंसेक्ट को किल करने में यूज होने के बाद भी रिमेन अमाउंट में बचा होता है। तो ये जो रेसिडुअल केमिकल्स होते हैं ये हमारे वाटर सिस्टम में जाके जब भी रेनफॉल होता है, जब ये उसके थ्रू जाके हमारे सरफेस वाटर में वो कंटेमिनेट करते हैं। इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, सॉरी, पैथोजेनिक कंटामिनेशन। पैथोजेनिक कंटामिनेशन क्या होता है? पैथोजेनिक कंटामिनेशन में आपने कभी भी वाटर सोर्स को देखा होगा तो इस तरह की इमेजेस एनिमल वॉशिंग और वॉशिंग बहुत कॉमन है, जिसके कारण ओपन डेफिकेशन, सीवेज मिक्सिंग ये बहुत कॉमन है, जिसके कारण पैथोजेनिक कंटामिनेशन होता है। यूट्रोफिकेशन, अब हम बात करते हैं यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन एक पॉल्यूशन नहीं, एक प्रोसेस है। जब न्यूट्रिएंट्स, जैसे एग्रोकेमिकल्स की बात की हमने, तो एग्रोकेमिकल से जो नाइट्रेट, नाइट्राइट और अमोनिकल नाइट्रोजन के जो कंपाउंड होते हैं या फास्फोरस किसी एक्वेटिक सिस्टम में जब जाके मिक्स होती है तो उस एक्वेटिक सिस्टम में प्लांट्स की ग्रोथ जो है वो फास्ट होती है। फास्ट ग्रोथ होने के कारण उनकी डेथ भी फिर फास्ट होती है। लेकिन एक्वेटिक सिस्टम में जो ऑक्सीजन का लिमिटेड अमाउंट अवेलेबल रहता है 8 mg पर लीटर, और एटमॉस्फेयर से कंटिन्यू वाटर में जब मूवमेंट होता है तब वो एक्सेस अमाउंट में ऑक्सीजन ट्रैप करता है। लेकिन यदि वाटर स्टेबल होता है तो उसमें ऑक्सीजन की ट्रैपिंग नहीं होती। तो खासकर जब लेक वाटर में जब ये न्यूट्रिएंट जाते हैं तो कंटिन्यूस न्यूट्रिएंट जाने से प्लांट की ग्रोथ जल्दी जल्दी होती है और उनकी डेथ होती है। और डेथ होने से उस रिवर का जो रिवर, स्पेशली लेक का जो बायोमास है वो बढ़ता जाता है और धीरे धीरे जो उसके जो बेस है या जो उसका तल है वो धीरे धीरे अप आता जाता है और रिवर का जो रिवर या लेक का कैचमेंट एरिया कम होता जाता है और धीरे धीरे एक लेक जो होती है, खासकर लेक्स में देखा गया क्योंकि वहां वाटर का मूवमेंट नहीं होता है, वो लेक एक मैदान में कन्वर्ट हो जाती है। और इस तरह से यूट्रोफिकेशन से हम देखते हैं कि इसकी वाटर क्वालिटी डिटोरिएट होने के कारण वो हमारे वाटर सोर्स की लिस्ट से हट जाती है और डिसअपियर हो जाती है। और जैसा कि आपको सभी को मालूम है कि लैंड की बड़ी शॉर्टेज है, लैंड के ऊपर सबकी नजर रहती है, फिर उसके ऊपर किसी तरह कॉम्प्लेक्स या कोई चीज बना दी जाती है जिससे हमारा लेक पूरी तरह से खत्म हो जाती है। तो हमें लेक्स को प्रोटेक्ट करने के लिए उसमें नाइट्रेट कंटेनिंग या न्यूट्रिएंट कंपाउंड को मिलने से रोकना चाहिए। अब यदि हम ग्राउंड वाटर थ्रेट्स की बात करें तो ग्राउंड वाटर में मेजर थ्रेट क्या है? ग्राउंड वाटर में जियोजेनिक कंटामिनेशन, फ्लोराइड, आयरन, आर्सेनिक, ये जियोजेनिक कंटामिनेंट्स है। ये वाटर में जो ग्राउंड वाटर होता है उसमें ऑटोमेटिकली आते हैं, मतलब जियोलॉजिक चेंजेस के थ्रू आते हैं। तो इसमें इसके लिए ह्यूमन एक्टिविटी रिस्पॉन्सिबल नहीं होती। फिर अर्बन वेस्ट, इस तरह के बोटल्स वगैरह हम लोग अपने घरों में यूज करते हैं, हार्पिक एसिड चीजें यूज करते हैं, डिटर्जेंट बोतल यूज करते हैं, तो या डिओड्रेंट यूज करते हैं या दूसरे कंपाउंड यूज करते हैं। तो वो जब ये हम लैंडफिल साइट में फेंक देते हैं तो ये धीरे धीरे वहां पे इस प्लास्टिक में क्रैक डेवलप होते हैं और इसमें जो रिमेनिंग लिक्विड होता है जो कि कई बार हाईली टॉक्सिक होता है, नहीं तो करोसिव होता है, ये धीरे धीरे पर्कुलेट होके हमारे ग्राउंड में जाता है। इंडस्ट्रियल वेस्ट की बात करें, इंडस्ट्री में इस तरह की इमेज या इस तरह का वेस्ट की इमेजेस बड़ी कॉमन है। वहां पे भी कई बार जो बैच रिजेक्ट हो जाते हैं या कुछ बैच एक्सपायर हो जाते हैं तो उनको इस तरह से वेस्ट जैसे रखा जाता है, तो उनमें भी किसी तरह के डैमेज होने से उसमें जो लिक्विड होता है वो पर्कुलेट होकर, लिक्विड या सॉलिड जो होता है वो पर्कुलेट होकर ग्राउंड वाटर में जाता है। इसके एग्रीकल्चर पॉल्यूशन, एग्रीकल्चर पॉल्यूशन में एक इंटरेस्टिंग चीज है कि जब रेनफॉल की स्पीड फास्ट होती है तो उस समय सरफेस वाटर के कंटामिनेशन की चांसेस होती है, और जब रेनफॉल की स्पीड स्लो होती है
तब ग्राउंड वाटर के कंटामिनेशन की चर्चा। तो क्योंकि ये तो जो केमिकल्स जो होते हैं या पेस्टिसाइड या फर्टिलाइजर, ये वाटर के साथ सॉल्युबल होकर परकुलेट होकर ग्राउंड वाटर में पहुंचते हैं, और जब रेनफॉल फास्ट होती है तो ये जो केमिकल्स हैं रन ऑफ के थ्रू जाके सरफेस वाटर में मिक्स होते हैं। अब बेसिकली हमें वाटर क्वालिटी मैनेजमेंट की जरूरत क्यों पड़ी, क्या है रीजन? तो हम देखते हैं जब 19th सेंचुरी में हम देखते थे, हम जो वाटर को यूज करते थे और डायरेक्ट रिवर में डिस्चार्ज करते थे, और 20th सेंचुरी में हमने क्या किया, हमने वाटर को ट्रीटमेंट किया, उसके बाद डिस्चार्ज करने लगे। लेकिन उससे भी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, हमारे वाटर में डिफरेंट तरह के सॉल्ट और केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड सभी बढ़ती गई। फिर हमने क्या किया कि अभी 20th सेंचुरी और 21st सेंचुरी में हम क्या कर रहे हैं, एक बार वाटर एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसको रिसाइकिल रीयूज करते हैं, या हमें करना चाहिए, और उसके बाद उस वाटर के एक मिनिमम अमाउंट को हमारे रिवर सिस्टम में डिस्चार्ज करना। इसके लिए ट्रायंगल से समझाया कि हमें वाटर का जो कंजम्पशन है, क्वालिटी वाटर कंजम्पशन, उसको रिड्यूस करना चाहिए, और वाटर कंजर्वेशन मेजर अपनाने चाहिए। रीयूज करना मतलब वाटर को एक सिंगल यूज करने के बाद, जैसे हम वॉशिंग वगैरह में या बाथिंग में जो वाटर यूज करते हैं, उसको हम डायरेक्ट इरिगेशन या हॉर्टिकल्चर में यूज कर सकते हैं। रिसाइकिल ऑफ वाटर की बात करते हैं तो हार्वेस्टेड वाटर को ट्रीटमेंट करके फिर से यूज करें। लेकिन इसमें यदि हम देखें, यदि हम वाटर का यूज लिमिटेड करते हैं तो उसमें लोअर रिस्क है और मोस्ट प्रेफरेबल है। लेकिन यदि हम रिसाइकिल करते हैं, ट्रीट करके वाटर यूज करते हैं, तो उसमें हेल्थ रिस्क ज्यादा है। तो हमें अपनी वाटर का जो कंजम्पशन है कम करके फ्रेश वाटर को प्रोटेक्ट करना है। अब हमारा कन्वेंशनल वाटर मैनेजमेंट क्या था? हमारा कन्वेंशनल वाटर मैनेजमेंट एक सिंपल थ्योरी थी कि हम वाटर एक्सट्रैक्ट करते थे और फर्टिलाइजर में, एग्रीकल्चर फील्ड में यूज करते थे, घरों में यूज करते थे, और इंडस्ट्रीज में यूज करते थे, और उसको हम उसके 30% न्यूट्रिएंट्स रिकवर करते थे, और 70% जो वाटर में न्यूट्रिएंट होते उसको रिकवर नहीं करते थे और डायरेक्ट रिवर में मिक्स करते थे। तो इससे वाटर होती थी और हेल्थ रिस्क है। लेकिन सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट ये कहता है कि जब वाटर हम यूज करते हैं, यूज करने के बाद उसको कंटिन्यूस डिफरेंट प्रोसेस से पास करके उससे बायोगैस प्लांट बनाया जाए, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट दिया जाए, और पोटेशियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है उनका रीयूज किया जाए। यदि वाटर में नाइट्रोजन और फास्फोरस कंपाउंड ज्यादा है तो उस वाटर को हम इरिगेशन के लिए यूज करें फिर से, ना कि हम उसमें अपने वाटर सोर्स में मिक्स कर दें। और इस तरह से हम अपने ड्रिंकिंग वाटर सोर्स को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। अब जब वाटर, कंटामिनेटेड वाटर या केमिकल्स जब किसी रिवर सिस्टम में जाता है तो होता क्या है? एक सिंपल सी थ्योरी स्कूल टाइम से हम लोग जो पढ़ते आ रहे हैं वो ये है कि वाटर में कुछ भी मिक्स हो जाता है तो वो डिग्रेडेबल हो जाता है और रिवर में एक प्यूरिफिकेशन की प्रोसेस होती है। तो यहाँ पे मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब कोई पोल्यूटेंट या कोई केमिकल कंटामिनेंट एक्वेटिक सिस्टम में जाता है तो उसमें वो वाटर के साथ वापस वोलेटाइल हो जाता है, डिजॉल्व होता है, डिजॉल्व होकर फोटोसिंथेसिस होकर ट्रांसफॉर्मेशन प्रोडक्ट बनता है। ट्रांसफॉर्मेशन प्रोडक्ट डिपेंड करता है उस केमिकल कंपाउंड के केमिकल स्ट्रक्चर के ऊपर। कई बार ट्रांसफॉर्मेशन प्रोडक्ट जो होता है उससे कम टॉक्सिक बनता है, लेकिन कई बार उससे अधिक टॉक्सिक भी बनता है। फिर हम बात करते हैं फिजिकली उसमें सॉल्यूशन और ऑप्शन होता है, और ये मतलब एक तरह से एब्जॉर्प्शन होता है हमारे, एब्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन होता है हमारे सेडिमेंट में। और जब क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज होती है केमिकल वापस हमारे एक्वेटिक सिस्टम में आ जाता है। इसके साथ साथ बायोडिग्रेडेशन होता है। बायोडिग्रेडेशन अपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से जब ऑक्सीजन की अमाउंट 8 mg पर लीटर होती है तब ये बायोडिग्रेडेशन होता है। अदरवाइज ऑक्सीजन के अमाउंट कम है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नंबर्स कम है, तो ये डिग्रेडेशन नहीं होता। बायो एक्यूमुलेशन, जैसे
फिश, एक्वेटिक एनिमल, इसमें जब हम बीआईएस के स्पीशीज के हिसाब से देखें तो बहुत लोअर कॉन्सेंट्रेशन पोल्यूटेंट रहते हैं, बीआईएस के लिमिट के अंदर रहते हैं, लेकिन ये एक्वेटिक एनिमल में कंटिन्यूस एक्यूमुलेट होते हैं। तो बायो, और जब बायो एक्यूमुलेशन होने के बाद जब इस फिश वगैरह को फूड के रूप में लिया जाता है तो हम देखते हैं कि उससे जो उसमें जो कंटेमिनेटेड एक्यूमुलेटेड है वो ह्यूमन बॉडी में आ जाता है। तो इसलिए जो पोल्यूटेंट की कॉन्सेंट्रेशन है वो स्मॉल अमाउंट में भी होने के, वाटर सिस्टम में, वाटर सोर्स में होने के बाद भी हमारे लिए हार्मफुल। नाउ एडवर्स इफेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूटेंट, एक्सक्यूज मी, यदि हम कुछ ग्लोबल फैक्ट की बात करें तो 2 बिलियन पीपल हैव नो एक्सेस टू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, 2.9 बिलियन हैव नो एक्सेस टू सैनिटेशन। मतलब वर्ल्ड में 2 बिलियन पीपल्स ऐसे हैं जिनको ड्रिंकिंग के लिए साफ पानी नहीं मिल रहा है। ए चाइल्ड एवरी 8 सेकंड फॉर ड्रिंकिंग कंटेम्परेट वाटर। वर्ल्ड में 8 सेकंड में एक चाइल्ड की डेथ होती है, उसके लिए कंटेमिनेटेड वाटर रिस्पॉन्सिबल है। 2025 में 40% वर्ल्ड पॉपुलेशन और अबाउट 3 बिलियन पीपल लिव इन कंट्री वेयर इट इज डिफिकल्ट टू इम्पॉसिबल टू गेट इनफ वाटर टू सैटिस्फाई देयर बेसिक नीड। मतलब हमारे पास एक क्वालिटी वाटर नहीं है कि हम उसको, इतने 40% लोग, वर्ल्ड पॉपुलेशन ऐसी हो जाएगी कि जो अपनी बेसिक नीड के लिए वाटर नहीं रहे। इसके अलावा डायरिया जो कि कंटेमिनेटेड वाटर के कारण होता है, उसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। ग्लोबली 130 बिलियन पीपल आर नाउ एस्टिमेटेड टू बी पोटेंशियली एक्सपोज्ड इन आर्सेनिक। आर्सेनिक जो है वो ग्राउंड वाटर पोल्यूटेंट है और उसके कारण लगभग 130 बिलियन पीपल जो है वो इफेक्टेड है। अब यदि हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में 30% रूरल पॉपुलेशन को ट्रीटेड वाटर मिलता है और 90% अर्बन पॉपुलेशन को ट्रीटेड वाटर मिलता है। मतलब 10% पॉपुलेशन ऐसी है आज की डेट में भी कि जिसको ट्रीटेड वाटर नहीं मिलता। मोर देन 300 मिलियन एक्यूट डायरिया के 2010 में डायरिया के एपिसोड रिकॉर्ड हुए थे। 21% कम्युनिकेबल डिजीज आर वाटर रिलेटेड। तो ये फिगर एंड फैक्ट है। और हमारे देश का लगभग 17 स्टेट, 200 डिस्ट्रिक्ट जो है वो फ्लोरोसिस प्रॉब्लम से सफर कर रही है। वहां पे फ्लोराइड की कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पे पांढरपुरा एक जगह है महाराष्ट्र में, वहाँ फ्लोराइड की कंसंट्रेशन मोर देन 40 mg पर लीटर तक रिकॉर्ड करी गई है, जबकि हमारी फ्लोराइड की कॉन्सेंट्रेशन 1.0 mg पर लीटर होनी चाहिए डिजायरेबल लिमिट, और 1.5 से परमिसिबल लिमिट है पीआईएस के हिसाब से। और 2006 में एक एस्टिमेट निकाला गया है जिसमें कोई अभी इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है कि पर पर्सन जो वाटर के कंटेमिनेशन से होने वाली बीमारियां पर पर्सन 2100 अप्रोक्सीमेट पर ईयर एक्सपेंड करता है। अब हम बात करते हैं इसके जो एडवर्स इफेक्ट हैं। जैसे हमारी जो, यदि हम पीएच की बात करें, आपने स्कूल डेज से पढ़ा होगा, तो इसको ये जो स्लाइड है सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। इसमें देखिए बैटरी एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, लेमन जूस, उस एसिड रेन, एसिडिक लैक सभी का पीएच दिया गया है। लेकिन उस पीएच के इनमें से क्या फर्क क्या पड़ता है? कई बार आपने सुना होगा कि किसी एक्वेटिक सिस्टम में फिश डाई हो गई, तो किसी भी एसिडिक कंपाउंड से यदि फिश जिस पॉन्ड में या लेक में या रिवर में फिश है, तो यदि इसका पीएच 4.2 हो गया तो वहां पे फिश डाइस होने की पॉसिबिलिटी है। यदि पीएच, जैसे हम बनाना खाते हैं या बनाना जूस पीते हैं, तो इसका पीएच 5 to 5.3 होता है, और क्लीन रेन में जो पीएच होता है 5.6 होता है। लेकिन ये फ्रॉग एग्स, टेडपोल, फ्राई फिश, फ्लाई, ये 5 पीएच में इनकी डेथ हो जाती है। रेनबो ट्रॉट जो होते हैं वो 6 पीएच में, मिल्क हम 6 पीएच का पीते हैं, लेकिन जो रेनबो ट्रॉट है वो 6 पीएच में डाई हो जाता है। तो किसी तरह का पोल्यूटेंट हमारे एक्वेटिक सिस्टम में जाने से कोई एक भी पैरामीटर में चेंज होता है, जो वहाँ एक्वेटिक एनिमल्स हैं उन पर बहुत एडवर्स इफेक्ट पड़ता है।
सोर्स ऑफ बैक्टीरियोलॉजिकल कंटामिनेशन, ये स्लाइड सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। देखिए डिफरेंट टाइप के एनिमल, डिफरेंट टाइप की एक्टिविटी हमारे जो वाटर बॉडी है उसको कंटामिनेट करते हैं, जिससे कि पैथोजेनिक वायरस इन वाटर, वेस्ट वाटर में पहुंचने से जो हेल्थ रिस्क है वो बढ़ती है। अब हम बात करें जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया का जो मेन सोर्स है वो ह्यूमन फेसिस है। ह्यूमन फेसिस के वाटर में मिक्सिंग से जो सीवेज हम कहते हैं या ओपन डेफिकेशन होने से टाइफाइड, पैराटाइफाइड, फ्लोमिनेलिसिस, वेस्ली डिसेंट्री, इस तरह की बीमारी होती है। तो ओपन डेफिकेशन प्रैक्टिस हमारे इंडिया में पूरी तरह से बंद होना चाहिए और किसी तरह की सीवेज मिक्सिंग हमारे वाटर सिस्टम में नहीं होना चाहिए। और एक और पोल्यूटेंट है नाइट्रेट। तो नाइट्रेट हमारे सिस्टम में किस तरह से आता है? नाइट्रेट, नाइट्रोजन साइकिल हमारे सिस्टम में चलती रहती है। वो नाइट्रेट से अमोनिकल नाइट्रोजन, अमोनिकल नाइट्रोजन से नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड से नाइट्रेट में कन्वर्सन होता है। तो ये एक नेचुरल साइकिल चलती रहती है और नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में जाती रहती है। लेकिन मैन मेड में डोमेस्टिक वाटर, जो सेप्टिक टैंक से और जो सीवेज वाटर होता है उसमें हाई कॉन्सेंट्रेशन में नाइट्रेट होता है। फर्टिलाइजर जो यूज होते हैं उसमें हाई कॉन्सेंट्रेशन में नाइट्रेट होता है। और इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट जो होते हैं उसमें भी नाइट्रेट होता है। तो फूड इंडस्ट्री जो होती है उसमें नाइट्रेट के अमाउंट ज्यादा होता है। लेकिन नाइट्रेट की जो ड्रिंकिंग वाटर की लिमिट है वो 40 mg पर लीटर है और उसकी मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट को कोई रिलैक्सेशन नहीं। तो ये नाइट्रेट का जो है, ये ब्लू बेबी सिंड्रोम, जो नेक्स्ट स्लाइड, ब्लू बेबी सिंड्रोम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ब्लू बेबी सिंड्रोम, यदि प्रेग्नेंट मदर 100 mg पर लीटर से 100 mg पर लीटर नाइट्रेट कॉन्सेंट्रेशन का वाटर कंज्यूम करती है, तो बेबी होता है उसमें ब्लू बेबी सिंड्रोम होने की पॉसिबिलिटी होती है। व्हाई? बिकॉज this blue baby syndrome is caused by large amount of nitrated water react with oxyhemoglobin। ऑक्सीहोमोग्लोबिन क्या है? ऑक्सीजन कैरिंग ब्लड प्रोटीन है। और जब ये नाइट्रेट उस कंपाउंड में जड़ा होता है तो उसकी ऑक्सीजन कैरी करने की कैपेसिटी कम। और साथ साथ ये हमारे एडवर्स बच्चे के जो डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी अटैक करता है। जनरली ब्लू बेबी की जो प्रॉब्लम है जब 100 mg कॉन्सेंट्रेशन से ज्यादा होता है तब होता है। यदि 20, 30, 40 mg है तो ब्लू बेबी सिंड्रोम नहीं होता। अब हम आर्सेनिक की बात करें। आर्सेनिक एक हाईली टॉक्सिक पैरामीटर है, वाटर क्वालिटी पैरामीटर है, जिससे जिससे कैंसर तक होने की पॉसिबिलिटी व्यक्त करी गई है। ये माइनिंग वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट और आर्सेनिक और पेस्टिसाइड से जाता है। और जब ये ग्राउंड वाटर में जो रॉक्स होती हैं जिसमें आर्सेनिक कंटेंट है उसमें से जब वाटर फिल्टर होके जाता है तो उसके थ्रू ये आर्सेनिक हमारे सिस्टम है। फ्लोराइड, फ्लोराइड नेचुरल में फ्लोराटाइट, फ्लोराटाइट, माइकास, एम्फिब्रोलाइट, टोपाज, इस तरह के कई एलिमेंट पाए जाते हैं। और ये इंडिया में डिफरेंट स्टेट में एक्सेस में भी पाए जाते हैं। तो ये भी एक्सेस में पाए जाते हैं जब वाटर पर्कुलेट होता है ग्राउंड में, तो इससे डिजोल्व होके वाटर जो ग्राउंड वाटर सोर्स में कंटेमिनेशन बढ़ाता है। अब ये बात करें कि फ्लोराइड के और भी क्या क्या सोर्स हैं, तो टूथपेस्ट में फ्लोराइडेड वाटर में, जूस में, मैकेनिकली ड्यूबन चिकन में, वाइन में, फिश में, टी में, टोबैको में, प्रोसेस और एनेस्थेटिक्स में भी फ्लोराइड कंपाउंड का यूज होता है। तो ये सभी चीजें फ्लोराइड का सोर्स है और जिससे कि फाइनली हमारे ड्रिंकिंग वाटर में फ्लोराइड पहुंचता है। इस फ्लोराइड के इफेक्ट क्या है? स्केलेटल फ्लोरोसिस और डेंटल फ्लोरोसिस। स्केलेटल फ्लोरोसिस में सीवियर पेन, स्टिफनेस इन द नेक, बैकबोन एंड जॉइंट, सीवियर पेन, हिप रीजन, painful movement, deformities in the limb. In extreme cases, paralysis, muscular or premature erect. फ्लोराइड की जो लिमिट है, ये डिजायरेबल लिमिट है फ्लोराइड 1 mg पर लीटर, लेकिन परमिसिबल लिमिट 1.5 mg पर लीटर है। यदि इस अमाउंट से ज्यादा होता है फ्लोराइड तो हमारी बॉडी में इसके हार्मफुल इफेक्ट रिपोर्ट किए गए। यदि आर्सेनिक की बात करें तो आर्सेनिक की जो कॉन्सेंट्रेशन है बहुत कम होती है, 0.01 mg, मतलब माइक्रोग्राम लेवल पे होती है। यदि आर्सेनिक की कॉन्सेंट्रेशन
ज्यादा होती है तो स्किन कैंसर, व्हाइट पिगमेंटेशन, इन सब चीजों की प्रॉब्लम देखी गई है। इस तरह की इमेज नॉर्थ ईस्ट रीजन, बांग्लादेश और बिहार के कुछ जगह पे आर्सेनिक कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा पाई गई। अब हम बात करते हैं पेस्टिसाइड। पेस्टिसाइड एक ऐसा कंपाउंड है कि जो नेचर में नहीं पाया जाता, इसको हमने सिंथेसिस किया है। दिस इज ए केमिकल डेजिग्नेटेड टू किल, रिड्यूस और रिपेल पेस्ट इंसेक्ट। अब इंसेक्ट के लिए इंसेक्टिसाइड यूज करते हैं, वीड कंट्रोल के लिए हर्बिसाइड, मॉल्स के लिए फंजीसाइड, रोडेंटोसाइड रेट और माइस के लिए। ये हमारी एग्रीकल्चर फील्ड और हमारे घरों में यूज होता है। हम अपने घरों में फ्यूमिगेंट यूज करते हैं, जो हम लिक्विड मॉस्किटो रिपेलेंट यूज करते हैं, लिक्विड जो गुड नाइट वगैरह यूज करते हैं। इसकी ये प्रॉपर्टी होती है कि ये रूम टेम्परेचर पे वेपर फॉर्म में रहते हैं। जब ये वेपर फॉर्म में रहते हैं, एक समय तक ये वेपर फॉर्म में रहते हैं, लेकिन ये फाइनली जब जब हम घर की क्लीनिंग करते हैं थ्रू दी वाटर, या ये एटमॉस्फेयर में रहते हैं, तो ये वाटर के थ्रू जाके हमारे वाटर सोर्स को कंटामिनेट करते हैं। लेकिन यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा, ये इंसेक्टिसाइड फ्यूमिगेंट जो होते हैं वो हाईली टॉक्सिक होते हैं। इसका एक रिस्ट्रिक्टेड यूज करना चाहिए, नहीं तो हमारे बॉडी में कई तरह के डिसऑर्डर होते हैं और कई जगह इन पेस्टिसाइड के कारण कैंसर तक के केस रिपोर्ट किए गए हैं। यदि ड्रिंकिंग वाटर की बात करें तो 1991 के स्पेसिफिकेशन में इसकी कॉन्सेंट्रेशन 0.001 mg पर लीटर होती थी, लेकिन अभी लगभग 18 नंबर ऑफ पेस्टिसाइड को इंट्रोड्यूस किया गया है और 18 नंबर ऑफ पेस्टिसाइड की बहुत लो अमाउंट में मात्रा होनी चाहिए, जिसके कारण जिससे हमारा जो वाटर है उससे कैंसर होने की संभावना नहीं रहेगी। यदि वाटर में पेस्टिसाइड की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो कई स्टडीज ऐसी आई हैं कि उससे कैंसर की पॉसिबिलिटी है। केरल में एंडोसल्फेन को पूरी तरह से बैन कर चुके गए हैं। डीडीटी ऑल ओवर वर्ल्ड में बैन है, लेकिन इसका अनऑथराइज यूज अभी भी हो रहा है। ये टेबुलर फॉर्म में बताया है कि किस पेस्टिसाइड से किस तरह की प्रॉब्लम होती है। बहुत सारे पेस्टिसाइड जैसे डीडीटी से कार्सिनोजेनिक होता है, डाइएल्ड्रिन एंजाइम एक्टिविटी को रिश्ता है, और माइरेक्स जो है ये भी कार्सिनोजेनिक होता है। इनकी कई स्टडीज करी गई और बताया गया है कि पेस्टिसाइड जो होता है वो हमारे लिए बहुत हार्मफुल है। अब मैं अपने सेकेंड लास्ट टॉपिक पे आऊंगा, वाटर क्वालिटी रिलेटेड लेजिस्लेशन। तो वाटर क्वालिटी रिलेटेड हमारे पास मेंटेन करने के लिए लेजिस्लेशन क्या है? तो वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट 1974 में बनाया गया, जिसमें ये बताया गया कि वाटर की होलसमनेस मेंटेन हमें करना है। An act to provide for prevention and control of water pollution and the monitoring, maintaining or restores the wholesomeness of the water for establishment with the view carry out the purpose aforesaid of board for the prevention and control of water pollution, for confirming and assigning of such board powers and functions related thereto, and for matter for connected herewith. इसके लिए अथॉरिटी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को दी गई, जिनको इस पर्पस से बनाया गया है। ये 1974 से वर्क कर रहा है। इसकी एप्लीकेबिलिटी ऑल ओवर इंडिया में है। इसमें 64 सेक्शन है। कुछ सेक्शन में यहाँ पे आगे आपको डिस्कस करूंगा। इस एक्ट को बहुत अप्रोप्रिएट स्टेप माना गया वाटर पोल्यूशन मैनेज करने के लिए या वाटर क्वालिटी मैनेज करने के लिए। ये वाटर की होलसमनेस को मेंटेन करने के लिए एक अप्रोप्रिएट एक्ट है। ये एक्ट जो है वो पर्टिकुलर टाइप के पोल्यूशन के साथ से डील करने के लिए एक इंटीग्रेटेड अप्रोच देता है। ये एक इम्पोर्टेंट लेजिस्लेशन है जो नेशन की कॉन्फ्रेंस में ह्यूमन एनवायरनमेंट में हुई थी 1974 पे। उसकी डायरेक्शन में एक सबसे स्ट्रॉन्ग स्टेप माना। इसके बाद इसमें ये मैं यहाँ डिस्कस करना चाहूंगा, पावर टू स्टेट गवर्नमेंट टू रिस्ट्रिक्ट द एप्लीकेशन ऑफ द एक्ट टू सर्टेन एरिया। स्टेट गवर्नमेंट किसी भी एरिया को पोल्यूशन के एक्ट के तहत रिस्ट्रिक्टेड कर सकती है। जैसे दिल्ली इंडस्ट्रियल स्टेट नहीं है, तो इस एक्ट के रूल के तहत ही सेक्शन 19 के तहत ही उसमें इंडस्ट्रीज लगाने पे बैन है। पावर टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन, जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के ऑफिसर्स हैं या पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड किसी भी पोल्यूशन रिलेटेड इंफॉर्मेशन को किसी भी इंडस्ट्री से ले सकता है एंड वहां से सैंपल कर सकता है, उनकी एनालिसिस कर सकता है, और किसी भी जो इंडस्ट्रियल प्रीमाइसेस है उसमें पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के ऑफिसर इंस्पेक्ट करके
उसकी पोल्यूशन के, यदि पोल्यूशन ज्यादा है तो उसकी रिपोर्ट हायर अथॉरिटी को दे के उसके अगेंस्ट में एक्शन ले सकते हैं। इसके साथ साथ यदि पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड चाहे तो सेक्शन 24 के तहत जो भी न्यू या न्यू डिस्चार्ज है उस पर रोक लगा सकता है। इसके साथ साथ सीवेज ट्रीटमेंट उससे जो इफ्लुएंट डिस्चार्ज होता है सेक्शन 26 के तहत उसके प्रोविजन को भी खत्म कर सकता है। और यदि पहले से कोई परमिशन दी गई है तो वाटर पोल्यूशन की कंडीशन देखते हुए उसको कंट्रोल कर सकता है। तो ये पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के कई सेक्शन है उस पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल के एक्ट के कुछ प्रोविजन है उसके तहत वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल किया जाता है। और यदि इन एक्ट को यदि कोई इंडस्ट्रीज नहीं मानती है तो उस इंडस्ट्री को बहुत स्ट्रिक्ट पनिशमेंट है, 3 months की जेल और 10,000 रुपीज और बोथ, और 1.5 year की 1.5 year to 6 year imprisonment and fine additional 5,000 per day, 2 to 7 year of failure of continue beyond one year, 3 months और 10,000 और both सेक्शन। तो ये सेक्शन दिए गए हैं और किस तरह के नॉर्म्स दिए गए हैं। यदि उसके नॉर्म्स को फॉलो नहीं किया जाता है तो इंडस्ट्रीज को पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड पनिश करता है और कई बार इंडस्ट्री को नोटिस देके वो कई इंडस्ट्रीज को बंद भी कर देता है। अब हम सेज एक्ट करें। सेज एक्ट जो है, अब यदि आप देखें, अब हमारे घरों में वाटर टैक्स लगता है तो वाटर टैक्स जो है वो सेज एक्ट के कारण लगता है। 1977 में पोल्यूशन कंट्रोल एंड प्रिवेंशन एक्ट के तहत एक सेज एक्ट, ये एक्ट जो है हमारी अथॉरिटी को वाटर में टैक्स लगाने का प्रोविजन देता है। इसीलिए जो म्युनिसिपल पार्टी या म्युनिसिपल एजेंसी जैसे ऑरेंज सिटी वाटर या किसी एजेंसी को ऑथराइज करती है तो वो हमसे टैक्स लेती है। तो इसमें 70 क्लॉजेज हैं और ये ऑल ओवर इंडिया में इम्प्लीमेंटेड है एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। इससे जो कलेक्शन आता है उस कलेक्शन का यूज जो होता है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को के ऑगमेंटेशन में किया जाता है और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को स्ट्रेंथन करने में किया जाता है। और इस एक्ट में है क्या, इस एक्ट में जो ट्रीटमेंट के प्रोविजन भी है। यदि कोई प्रॉपर्ली इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट इंस्टॉल करता है और पीसीपी एक्ट पोल्यूशन कंट्रोल के पूरे एक्ट को फॉलो करता है और सभी स्टैंडर्ड को जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के जैसे नॉर्म है 250 mg पर लीटर से वाटर डिस्चार्ज नहीं होना चाहिए, उस डिस्चार्ज के नॉर्म्स को मानता है तो उसमें 25% रिबेट भी है। और यदि वो ये सब फैसिलिटीज हैं लेकिन वो यदि किसी तरह से उसको वाटर का कंजम्पशन एक्सेस है या किसी भी तरह के स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब नॉर्म को नहीं मानता है तो उसके लिए भी उसको फिर ये रिबेट नहीं मिलता है, उसको नॉर्मल रेट से टैक्स लगता है। और जो वाटर की क्वांटिटी भी है हर एक प्रोसेस की वो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने डिफाइन की हुई है। तो यदि हम नेक्स्ट स्लाइड में ये देखिए, आपको पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की एक रिपोर्ट है, बुक अवेलेबल है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की। उसमें हर एक प्रोसेस के लिए कितना अमाउंट वाटर लगेगा। इंटीग्रेटेड आयरन एंड स्टील के लिए 20 क्यूबिक मीटर पर टन ऑफ फिनिश स्टील, मतलब इतना स्टील प्रोड्यूस होने के लिए 20 क्यूबिक पर टन वाटर लगेगा। यदि उससे ज्यादा क्वांटिटी में वाटर लगता है तो इसका मतलब है कि वो वाटर का एक्सेस यूज कर रहे हैं। तो उस केस में भी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड उससे किसी तरह के जो वो वाटर किसी न किसी सिस्टम से एक्सट्रैक्ट कर रहा होगा उस एक्सट्रैक्शन के खत्म कर देगा। तो इस तरह से टेबुलर फॉर्म में रूल नंबर 6 में सेज एक्ट के दिया हुआ है कितने किस इंडस्ट्री के लिए कितने अमाउंट में वाटर यूज करना है। इसके बाद मैं आता हूँ वाटर क्वालिटी, जो मेरा लास्ट टॉपिक है, वाटर क्वालिटी ड्यूरिंग लॉकडाउन। तो यदि आप वाटर क्वालिटी ड्यूरिंग लॉकडाउन देखते हैं तो जब लॉकडाउन मार्च 2020 में लगा तो वहां से इमीडिएट हमारे जो रिवर्स थे, रिवर्स से जो भी बाथिंग वॉशिंग एक्टिविटी, इवन कई जगह तो डेथ भी कम होने के कारण वहां पे वाटर की जो वाटर प्योर होना शुरू हो गया या वाटर क्वालिटी का अपग्रेडेशन होना शुरू हो गया। और पूरे देश में इस बात को लेकर डिस्कशन शुरू हो गया कि यदि रिवर को
यदि एलोन छोड़ दिया जाए, यदि किसी तरह का उसको डिस्टर्ब नहीं किया जाए, तो उसमें सेल्फ प्यूरिफिकेशन हो सकता है। और ये यदि न्यूज में आप देखिए तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने ये दावा किया था कि जो गंगा रिवर है वो क्लीन हुई है। इसके अलावा और भी कई साइंटिस्ट ने दावा किया कि गंगा रिवर और कई रिवर भी क्लीनिंग हुई है। और फिर कई वो इस वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग के वर्क में लॉकडाउन के पीरियड में लगी और उन्होंने देखा कि जो वाटर क्वालिटी उसमें ड्रास्टिक चेंज आया है। जैसे प्रोफेसर बी.डी. त्रिपाठी, चेयरमैन ऑफ महाना मालवीय रिसर्च सेंटर, गंगा रिवर डेवलपमेंट एंड वाटरशेड मैनेजमेंट, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के हैं। तो उनने देखा कि प्री लॉकडाउन के पहले जो डीओ था वो 8.3 था और बीओडी 3.8 था और वोकल कोलिफॉर्म 2200 था। लेकिन लॉकडाउन के समय डीओ की मात्रा बढ़ गई। डीओ की मात्रा बढ़ना एक अच्छा सिग्नल है हमारे लिए। डीओ की मात्रा बढ़ गई और उसके बाद बीओडी की मात्रा कम हो गई और फीकल कोलिफॉर्म ये है जो उसकी कॉन्सेंट्रेशन भी कम हो गई। इसके साथ साथ ये सुलतेश्वर घाट, सामने घाट, अस्सी घाट और दसवीं दसवें दसमदेव घाट और राजघाट में यदि हम देखें तो इन सभी में देखें डीओ और बीओडी की जो कॉन्सेंट्रेशन है, डीओ की कॉन्सेंट्रेशन इंप्रूव हुई और बीओडी की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम हुई। इसके साथ साथ जो संगम जो तीन नदी का गंगा में जो संगम है, उसमें तीन नदी में जो संगम है उसमें हमने देखा कि टोटल कोलिफॉर्म और फीकल कोलिफॉर्म जो है वो मार्च से लेकर अप्रैल तक उनकी कॉन्सेंट्रेशन कब हुई। ये क्यों हुआ? क्योंकि साड़ी इंडस्ट्री क्लोज हुई, ऑटोमोबाइल वर्कशॉप क्लोज हुआ, होटल्स रेस्टोरेंट क्लोज हुए, क्रेमेशन में रिडक्शन हुआ, फ्लोटिंग जो पॉपुलेशन है वो रिड्यूस हुई और सॉलिड वेस्ट का डंप उसमें कम हुआ। तो रिवर सेल्फ प्यूरिफिकेशन हुआ और रिवर की क्वालिटी इंप्रूव हुई। तो इसमें ये डिस्कशन होना शुरू हो गया कि यदि रिवर को अनअटेंडेड छोड़ दिया जाएगा तो रिवर को मतलब रिवर में किसी तरह की ह्यूमन एक्टिविटी वगैरह नहीं करी जाए तो रिवर सेल्फ प्यूरिफिकेशन से भी रिवाइव कर सकती है। हम करोड़ों रुपए के ट्रीटमेंट प्लांट बनाते हैं, उसके कंपेयर में रिवर में यदि रिवर का फ्लो मेंटेन किया जाए तो रिवर में एक सेल्फ प्यूरिफिकेशन की कैपेसिटी होती है। सेंटर बोर्ड से मैं आता हूँ, हमने भी ये लॉकडाउन के समय पे स्टडी करी और ये देखा कि लगभग 70% स्टेशन थे वहां पे कॉस्ट टू ट्रेन मिला, डीओ इम्प्रूव हुई, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इम्प्रूव हुई, बीओडी जो है वो उसमें भी रिडक्शन हुआ, टोटल कोलिफॉर्म फीकल कोलिफॉर्म में रिडक्शन हुआ, टोटल डिजोल्व सॉलिड में रिडक्शन हुआ। इसके साथ साथ ये 10-11 रिवर के भी नाम डिस्प्ले किए गए, ये बताया गया कि अधिकांश रिवर में तो जो अमाउंट है वो इंक्रीज हुआ। इसके अलावा यमुना रिवर जो गंगा में के पास से फ्लो होती है उसमें भी कई लोकेशन में स्टडी की गई और ये पाया गया कि वहां की वाटर क्वालिटी इंप्रूव हुई है। तो प्री लॉकडाउन और पोस्ट लॉकडाउन के ये ग्राफ से क्लियर कट विजिबल होता है कि वहां पे पेंडेमिक सिचुएशन में वाटर क्वालिटी इंप्रूव हुई है। यहाँ ये रेड बॉक्स आप लॉकडाउन के समय के हैं और ये प्री लॉकडाउन के हैं। तो यदि आप बीओडी केमिकल ऑक्सीजन डिमांड और कंडक्टिविटी में देखेंगे इस मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में आपकी जो उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो रिड्यूस हुई है। इसके साथ साथ और भी स्टडी गई, इसमें ये देखा गया कि जो बीओडी है उसका अमाउंट भी लॉकडाउन पीरियड में रिड्यूस हुआ है। ये एल्सवेयर में एक पेपर पब्लिश हुआ था। ये वेम्बेंड लेक है जो कि केरल की सबसे बड़ी लेक है, 2000 स्क्वायर किलोमीटर की लेक है। उसको सैटेलाइट इमेजिंग से देखा गया और इस इमेज को 20 पार्ट में 20 पार्ट में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। 20 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जब इसकी सैटेलाइट इमेज देखी तो इसमें सस्पेंडेड पर्टिकुलर मैटर जो है उसकी कंसंट्रेशन फरवरी मार्च से ग्रेजुअली डिक्रीज होती गई और 16 मार्च में मिनिमम सस्पेंडेड पर्टिकुलर मटेरियल कंसंट्रेशन रही। ये क्यों हुआ? क्योंकि ड्यू टू बिगेस्ट लॉकडाउन कोविड-19 स्प्रेड इम्प्रूव एडजेसेंट लेक ऑफ वाटर क्वालिटी, सस्पेंडेड पर्टिकुलर मैटर concentration in Vermont Lake decreased by 15%. Out of 20 zones for the lowest April suspended particulate matter in 2020. This is possible due to beaches activity have been significant impact
ऑन वाटर क्वालिटी। जो वेम्बर्न लेक है वो टूरिज्म वगैरह के लिए बहुत बड़े बड़े मात्रा में यूज होता है, जिसके कारण वहां पे कई तरह के पॉल्यूशन है। जब हमने हिस्टोरिकल डाटा से भी कंपेयर किया तो सस्पेंडेड पर्टिकुलर मेटल की कंसंट्रेशन मोस्ट ऑफ द प्लेस में सस्पेंडेड पर्टिकुलर मेटल मार्च से अप्रैल में डाउन हुई। इसके अलावा प्रोफेसर मित्रा हैं जो कलकत्ता में, उन्होंने एक स्टडी करी और उन्होंने ये पाया कि जो कलकत्ता में जो गंगा रिवर है उसके उसके जो कई घाट हैं उसमें ये देखा गया कि 2020 से लेके 2000 अप्रैल 2 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल तक जो डिजोल्व ऑक्सीजन है इसके अमाउंट इम्प्रूव हुआ है। इसके अलावा लास्ट ईयर और उसके पहले के हिस्टोरिकल डेटा जब 4-5 साल के कंपेयर किए गए तब भी उन्होंने ये देखा कि इस करंट ईयर में अप्रैल में डिजोल्व ऑक्सीजन इम्प्रूव हुई है। इसी तरह के और भी ऐसे कई एविडेंस है जिससे ये पता पड़ता है कि हमारी जो वाटर क्वालिटी है वो इम्प्रूव हुई है। ये पब्लिकेशन के एनवायरमेंट रिसर्च में एक पेपर स्नेहा लोखंडवाल में पब्लिश किया था, उसमें जो एयर में जो पार्टिकुलेट मैटर है उसकी कॉन्सेंट्रेशन भी यदि हम देखें जनवरी से लेके अप्रैल तक तो अप्रैल में रिड्यूस हुई है। और एरोसोल ऑप्टिकल डेंसिटी की कॉन्सेंट्रेशन है इंडिया में, इसमें नासा ने इमेज दी है तो एरोसोल काफी हद तक पोल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। तो उसमें यदि आप देखते हैं तो यदि 2016 से लेकर 2020 के अभी रिसेंट में जो अप्रैल में स्टडी करी गई उसमें यह देखा गया कि उसमें जो एरोसोल की कॉन्सेंट्रेशन ग्रेजुअली डिक्रीज हुई है। इसके अलावा सैटेलाइट इमेज जो नाइट्रेट कॉन्सेंट्रेशन की जो एयर पाया जाता है उसमें यूरोपियन सैटेलाइट एजेंसी है उसने जो इमेज जारी की उसके हिसाब से भी हमारा जो एयर पोल्यूशन जो है, यदि हम यहाँ डेट देखें, थोड़ी डेट विजुअल नहीं है इसमें, तो यदि देखिए 24 मार्च 25 मार्च तो ये 25 से 20 अप्रैल 2020 में यदि हम देखें तो इसमें आप देखेंगे कि जो नाइट्रोजन ऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन है वो ग्रेजुअली रिड्यूस होती जा रही है। इसका और भी कई स्टडीज हैं जिसमें ये क्लियर कट कहा गया है कि वाटर क्वालिटी इंडेक्स भी रिड्यूस हुई है और एयर पोल्यूशन कम हुआ है। इट्स ऑल अबाउट माय प्रेजेंटेशन। थैंक यू फॉर पेशेंस हियरिंग। Thank you very much, sir, for such a lovely presentation. It was very informative, and we received the information on various new topics like conventional water management methods versus sustainable water management methods, the pollutants like fluorides, nitrates, arsenic, pesticides, and their harmful effects on environment and living beings. You told us about the various sections of Water Prevention and Control of Pollution Act 1974, and you shed light over the scenario of sewage treatment in various cities and states in India. So we are very thankful for your valuable information. I now open this session for question answer. I request all the attendees, students and participants to ask their question in the chat box. We will put forward your questions to our guest. In the meantime, I request all the panelists, if they are having something to interact, some questions to ask to our guest, you can please ask now. The session is open. Amay sir, Asif sir. You can also, students, you can also ask the question in our class WhatsApp group. You can ask in the chat box as well. And after this question answer session, we will give you the feedback link. You have to fill that feedback link. After submitting the feedback, you will receive an e-certificate automatically on the email ID which you will provide in the feedback link. Okay, so sir, we have a question. Shukla sir, can you Yes, ask please. Yes, please, please. Sir, we have one question from a student that in one of your slides, you told us that in 2013, only 26% of sewage treatment capacity was there in Nagpur. And after the addition of Bandewadi,
this is going to be increased, the capacity is going to be increased. So at present scenario, how the government is going to do anything to compensate this lack of treatment capacity in Nagpur region? What can be done by the government side? ओके, यदि हम नागपुर सिटी की बात करें तो ये गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा स्टेप है कि वहाँ भांडेवाड़ी प्लांट बनाया गया 100 MLD का। उसको कंप्लीट होने में लगभग 3-4 साल लगे और उसको वेस्टराज इंफ्राटेक ने बनाया। और गवर्नमेंट कंटिन्यूस जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है उनको बना रही है। फिर नाग रिवर के जो कैचमेंट एरिया है उसमें लोगों को सीवेज मिक्सिंग के लिए डिस्करेज कर रही है। और कई बार वहाँ पे जो कमर्शियल कॉम्प्लेक्स हैं उनको ये कहा गया है कि आप सीवेज ट्रीटमेंट करने के बाद ही वहाँ पे डिस्चार्ज करें। तो बेसिकली जो सीवेज आता है वो इंडिविजुअल हाउस होल्ड और कॉम्प्लेक्स से आता है। तो जो भी कॉम्प्लेक्स और इनकी जो कमर्शियल कॉम्प्लेक्स और इनकी जो परमिशन दी जाती है कमर्शियल कॉम्प्लेक्स और रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में, इन सभी जगह ये गवर्नमेंट स्टेप ले रही है कि पोल्यूशन कंट्रोल और प्रिवेंशन एक्ट के तहत उनको उस सीवेज डिस्चार्ज के लिए रिस्ट्रिक्टेड कर रही है। और उस रिस्ट्रिक्टेड करने के कारण जो वाटर क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो रही है। पहले की कंपेयर में वाटर क्वालिटी इम्प्रूवमेंट है। और अभी जब नई रिपोर्ट आएगी तो मुझे लगता है कि जो नागपुर है वो 70% सीवेज ट्रीटमेंट करने की कैपेसिटी में होना चाहिए। Okay, thank you, sir. We have another question from Mr. Ravi Bhargava. He's asking, what are the chances of success of a Namami Gange project? What do you think about that? What are the chances? It is a very difficult question for me because इसमें बहुत इमिनेंट पर्सन और बहुत लर्नेड पर्सन लगे हैं। किसी भी प्रोजेक्ट के जो चांसेस होते हैं वो पब्लिक पार्टिसिपेशन से होते हैं। हम यदि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बढ़ाते जाएंगे, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट 10 साल 15 साल के बाद उनकी इफिशिएंसी डाउन होगी, उसके बाद फिर वो हमारा सीवेज मिक्सिंग होने लगेगा। तो यहाँ पे ये चीज है कि पब्लिक पार्टिसिपेशन, यदि पब्लिक पार्टिसिपेशन होगा और तो हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो सस्टेनेबल है और उसमें हमारे कई जगह गंगा में इम्प्रूवमेंट देखने में। नमामि गंगे प्रोजेक्ट की आप साइट नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा की साइट पे जाएंगे तो कई जगह ऐसा देखा गया है कि इकोसिस्टम को बहुत अच्छे से बैलेंस कर दिया गया है। और उसके बाद वहाँ पे बहुत सारे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट किए जा रहे हैं जिससे गंगा की रिवर क्वालिटी जो है वो कंटिन्यूसली इम्प्रूव हो रही है। और गंगा का रिवर जो है वो हमारे मतलब प्राइम मिनिस्टर तक के लिए बहुत मेजर इशू है। तो ऐसी उम्मीद है और ऐसा कमिटमेंट भी है प्राइम मिनिस्टर का कि जल्दी ही गंगा जो है वो हमारी क्लीन होगी। लेकिन उसमें पब्लिक का जो पार्टिसिपेशन है वो बहुत इम्पोर्टेंट, पब्लिक पार्टिसिपेशन होना जरूरी है क्योंकि जो गंगा का जो कैचमेंट है उसमें 100 कॉन्स्टिट्यूंसी पड़ती है, कई हजारों विलेजेस पड़ते हैं, उनसे भी वेस्ट वाटर मिक्स होता रहेगा। और गंगा कम से कम 5-6 स्टेट से फ्लो होके जाती है और वो स्टेट जो है वो डेंसली पॉपुलेटेड है। तो यदि पब्लिक पार्टिसिपेशन रहेगा तो हमारी टेक्नोलॉजी के थ्रू हम गंगा को जरूर क्लीन कर पाएंगे। Okay, thank you, sir. We have one more question. Can desalination process of seawater, which is being done in the countries like Saudi Arabia and UAE, it is a costly process though, but can it help us, that is India, in future to tackle our water crisis problem? बेसिकली हर चीज में इकोनॉमिक इकोनॉमी देखी जाती है। यदि हम सी वाटर को ट्रीट करने जाएंगे तो वो एक एक्सपेंसिव अफेयर है। तो हमारे पास यदि वाटर रिसोर्सेस है, हमारी कंट्री में वाटर रिसोर्स रिवर वाटर इतना अवेलेबल है, यदि उसी को रिवर वाटर में भी हर जगह इतना पोल्यूशन नहीं है, बैक्टीरियोलॉजिकल पोल्यूशन बस है। बैक्टीरियोलॉजिकल पोल्यूशन को रिमूव करने के लिए बहुत एफर्ट नहीं लगती है। यदि बैक्टीरियोलॉजिकल कंटामिनेशन को हम रिमूव करते हैं तो हम सी वाटर को यदि प्रोसेस करने जाते हैं तो हम बहुत एक्सपेंसिव अफेयर में जाएंगे। और यदि हम अपने वाटर क्वालिटी सोर्स को प्रोटेक्ट करेंगे और उसको ट्रीट करके पियेंगे तो वो काफी लेस एक्सपेंसिव होगा। सी वाटर को ट्रीट करना
एक कॉस्टली अफेयर है। Sir, one more last question. That we know that the polar ice caps as well as the Himalayan glaciers are melting very rapidly. So, what are the drastic effects which we are going to see in the future related to water problem? And how can we tackle with that? How can we prevent the damage? ये थोड़ा सा जो क्वेश्चन है वो इस टॉपिक से थोड़ा हट के है, लेकिन फिर भी मैं अपने नॉलेज के हिसाब से बताता हूँ। क्योंकि क्लाइमेट चेंज होने से जो ग्लेशियर मेल्ट होंगे तो वाटर लेवल बढ़ने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, और वाटर लेवल बढ़ने से फ्लड वगैरह आने की पॉसिबिलिटी है, और वाटर का मिसमैनेजमेंट होगा। इसके अलावा वाटर क्वालिटी में कोई ड्रास्टिक चेंज होगा, इसकी कोई स्टडी नहीं। और ये है कि यदि एक्वेटिक सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ता है तो वहाँ जो एनिमल और फिश जो होते हैं उनकी डेथ होती है और इकोसिस्टम डैमेज। Okay, thank you, sir. Our HOD sir, Mr. Amay Khedkar, would like to share his views. Amay sir, am I audible to you? Your mic is on, sir. Hello, Amay sir, can you hear me? I can see you have raised your hand, sir, but your voice is not audible. Okay, I think there is some network issue on sir's side. So fine. At the end, I would like to thank our chief guest, Dr. Shukla sir, for sparing his time on Sunday and give us this valuable information. Thank you very much, sir. I would like to thank our honorable management to give us this opportunity to make this event a success. I would like to thank our team of Civil Engineering Department who have worked very hard to make this event a success. I would also like to thank the members of the Indian Waterwork Association, Mrs. Isha Khedikar ma'am and Mr. O.N. Mukherjee sir, who helped us in conducting this event successfully. Last but not the least, I would like to thank all the participants to make this event a grand success. At last, I would like to conclude this event with a small pledge on this World Environment Day. So let us take a pledge to plant more trees, adapt to eco-friendly habits, appreciate what nature does for us, and make our planet a greener place for our present as well as our future generations. On this note, I conclude this session today. The feedback link has been shared in the chat box. You can fill that feedback form and you will receive the e-certificates on your email ID. Thank you. Thank you, everyone. Thank you, sir. Okay, thank you. Students, please fill the feedback forms. After that only, you will receive the e-certificates. Okay, students, after filling the feedback form, you can leave this session. Thank you very much for your valuable time.